اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کیے ہوئے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس وقت کا موضوع ہے اسلام کے لیے باپ اور بیٹے کے درمیان لڑائی کب سے ہے، اور وہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے، اور یہ لڑائیاں کس بنیاد پہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے قرآن کریم نے بتایا ابراہیم رسول نوے انسان کے لیے اللہ نے امام قرار دیا۔ ابراہیم رسول کو جب امام قرار دیا گیا تو انہوں نے اپنی دعوت توحید کا آغاز خود اپنے گھر سے شروع کیا، اپنے والد سے جن کا نام آزر ہے ان سے شروع کیا۔ مگر آزر جو ہے وہ ملحد تھے، بت پرستی میں مشہور تھے، تو انہوں نے دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا۔ قرآن کریم میں 6 نمبر سورہ الانعام اس کے 74 نمبر آیت پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کہ کیا تو پکارتا ہے بتوں کو کارساز؟ بے شک میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ قوم آج بھی ہے جسے ہم ہندو کہتے ہیں، اور مسلمانوں میں خاص طور پر جو سنی اور شیعہ مسلمان ہیں، کچھ سلفی مسلمان بھی ہیں جو بتوں کو کارساز مانتے ہیں، اور یہ بت اپنے خیالی ہے۔ کسی کا بت بغداد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی کا بت کا تعلق بخارا سے ہے، کسی کے بت کا تعلق ایران سے ہے، مگر یہ بھی بت ہے جن کے آپ کارساز سمجھتے ہیں، جن کو آپ پوجا کر رہے ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ ان کی باتیں قرآن سے بہتر ہے، اور انہی کو آپ ترجیح دیتے ہو، بھلے وہ بغداد کے ہو یا بخارا کے ہو یا قم کے ہو یا مشہد کے کیوں نہ ہو۔ اور ہندو سماج کے لوگ، بودھا سماج کے لوگ، سکھ اور عیسائی اور یہودی سماج کے لوگ، انہوں نے کیا کیا، یہ اپنے توہم پرستی میں، بت پرستی میں اور ان کے لیڈروں کے پرستش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ لوگ گمراہی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ابراہیم رسول نے دعوت دی اپنے باپ کو، تو انہوں نے کیا کہا؟ 19 نمبر سورہ مریم کے 46 نمبر آیت پہ ہم دیکھیں گے، یہاں پہ بتایا جاتا ہے قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا۔ کہا اے ابراہیم، کیا تو میرے خداؤں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور سنگسار کر دوں گا، اور تو ایک طویل عرصہ کے لیے مجھ سے جدا ہو جا۔ 47 میں ہے قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا۔ کہا تجھ پر سلام ہو، میں تیرے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو مشرک باپ کے لیے دعا کا وعدہ تو کیا، دعا کیا بھی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ اس دعا کا جو جواب ہے وہ بتا بھی دیا
इन्नहु काना बी हफिया, वो मुझ पे मेहरबान है, मुश्रिक पे नहीं। इसके बावजूद इब्राहिम जो है अपने कौम को मुखातिब होके जो कहा, 21 नंबर सूरा अल अंबिया इसके 52 नंबर आयत पे हम देखेंगे, यहां अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ क़ाला लिअबीही व क़ौमिही मा हाज़िही तमासीलु अल्लती अंतुम लहा आकिफून। 53 में है क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन। और 54 पे है क़ाल लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन। जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, ये तमासिल क्या है जिनके तुम मुजावर बने बैठे हो? उन्होंने कहा, हमने अपने आबा को उनकी इबादत करते पाया। कहा, बेशक तुम भी और तुम्हारे आबा भी सरी गुमराही में है। ये मुजावरी सिस्टम अगर आपको देखना है तो मुसलमानों के बहुत सारे मराकिज है जहां जाके आप देख सकते हैं। कराची के रहने वाले हैं तो अब्दुल्ला शाह गाजी पे आप जाके देख सकते हैं। मुल्तान के रहने वाले हैं तो वहाँ बहुत बड़ा मज़ार है जहां आप जाके देख सकते हैं। और लाहौर में है तो दाता दरबार है। ये सब मुजावर बैठे हुए हैं। बुखारा में जाएंगे तो वहाँ सलाफियों के बहुत बड़ा शेख का मज़ार है। बगदाद में जाएंगे तो वहाँ हनाफियों का बहुत बड़ा मज़ार है। और हिंदुस्तान और बांग्लादेश तो मज़ारों से भरे पड़े हैं। तो ये मुजावर बने बैठे हैं और ये कहते हैं कि हम वही कर रहे हैं जो हमें इससे कबल हम अपने आबा व अजदाद को देखा। इसी तरह हिंदू समाज के अंदर भी हम देखते हैं। तो ये सब मुश्रिकीन जो है उनके करतूत है। और इब्राहिम के बारे में 3 नंबर सूरा आल इमरान के 95 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल सदक अल्लाह, कह दे अल्लाह सच कहता है, फत्तबिउ मिल्लत इब्राहिम हनीफा, तुम सब के सब मिल्लत इब्राहिम के पैरोकार बन जाओ जो कि हनीफा है। वमा काना मिनल मुश्रिकीन, और इब्राहिम मुश्रिकों में से नहीं है। अगर आप शिरिक से पाक रखना चाहते हैं अपने आप को तो इन मज़ारों से, इन मुजावरों से, इन पुरोहित और पापा और फादर से, इन मौलवी और मसालिक के ये जो बड़े बड़े बने हुए हैं इनसे दूर रहे और इस कुरान करीम के करीब आ जाए तो आप बच जाएंगे, वरना मुश्रिक होकर आपको मरना पड़ेगा। ये कुरान हमें बताता है 12 नंबर सूरा यूसुफ के 106 नंबर आयत पे, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला हुम मुश्रिकून, अक्सर लोग अल्लाह को मानते तो है लेकिन शिरिक के साथ। आप दाता दरबार पे जाके मांगते हैं तो क्या आप मुस्लिम हैं? नहीं, आप मुश्रिक हैं। शम्स तबरेज के मज़ार पे जाके आप मांगते हैं, क्या आप मुस्लिम हैं? नहीं, आप मुश्रिक हैं। इसी तरह आप अपने को ख्याली देवबंदी असलाफ को मान के चलते हैं, बरेलवी मसलक को मान के चलते हैं, उनके बड़े बड़ों को आप समझते हैं कि ये हमारे कारसाज हैं और उनके मुजावर आप बने हुए हैं। आप नसीरुद्दीन अलबानी को मानते हैं जबकि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो आप मुश्रिक हैं। आप यहां बैठे हुए कुरान को छोड़ के आप बुखारा में कुमंदे फेंक रहे हैं और आप सोच रहे हैं वो जो कुछ कहा है कुरान के नजर से वो सही है, लेकिन सही नहीं है। मुस्लिम होने के नाते आपको सिर्फ इस कुरान की तालीम को अपनाना है और इसी को फरोग देना है। वरना ये हिंदू लोग जो है, हिंदू समाज के लोग बुत बनाते हैं अपनी ख्याली और उसके सामने मुजावर बने हुए हैं। और मुसलमान बहुत सारे हैं जो शाह नूरानी में, अब्दुल्ला शाह गाजी में
दाता दरबार में शम्स तबरेज के मज़ार पे ये मुजावर बने हुए हैं, आप चढ़ावे देते हैं इनके नाम पे और उनसे आप मांगते हो, जबकि वो खुद ही मोहताज है। ये मुश्रिकीन का काम है। हर मुल्क में इस किस्म के मज़ार हैं। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। इस्लाम के लिए बाप और बेटे के दरमियान जो लड़ाई है वो शुरू से है। बेटा इब्राहिम है, बाप आजर है। आजर कुरान को नहीं मानते थे और इब्राहिम दावत कुरान को लोगों के सामने रखते थे। अगर आप इस दावत कुरान को लोगों के सामने नहीं रखते, अगर अपने आप को आप समझते हो कि आप तबलीगी जमात के हैं, आपके पास कुरान से बढ़कर फैज़ान सुन्नत या फ़ज़ाइल आमल, वो दो किताबें जो है ना, वो ज़्यादा हकदार है कि लोगों के सामने रखे जाए, तो आप मुशरिक हैं। चूंकि कुरान करीम के 5 नंबर सूरा अल माइदा के 67 नंबर आयत पे ऑर्डर दिया गया रसूल करीम को, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़ता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। ऐ रसूल, तबलीग करो उस चीज की जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल किया जाता है। अगर तुम उसकी तबलीग नहीं करते तो अल्लाह की रिसालत को जो है आप पहुंचा नहीं सके। यकीनन अल्लाह लोगों से आपको हिफाजत करेगा और काफिर कौमों को अल्लाह कभी भी हिदायत नहीं करता। मुल्तान में आप जमा होते हैं, रायगढ़ में जमा होते हैं, ढाका में जमा होते हैं, लेकिन कुरान आपके हाथ पे नहीं है। फैज़ान सुन्नत है या फ़ज़ाइल आमल है, तो अपने आप को मुस्लिम क्यों कहते हैं आप? मुशरिक है, पक्का मुशरिक। मुस्लिमीन के हाथ पे तो कुरान होता है और मुशरिकीन के हाथ पे कुरान के सिवा वो किताबें जो बुखारा से है, वो किताबें जो खुरासान से है, वो किताबें जो नई दिल्ली से है, वो किताबें जो कराची से है और पता नहीं कहाँ से हैं, वो उनके हाथ पे होते हैं। मुस्लिम बनने की कोशिश करें और मुस्लिम बनने के लिए आपको सिर्फ स्टडी करना है इस कुरान की, ये आपको मुस्लिम बना देगा। अगर इसको छोड़ेंगे तो आपको मुश्रिक बना देगा। और यही लड़ाई शुरू दिन से इब्राहिम और आजर के दरमियान रहा है। आज भी इब्राहिम और आजर मौजूद है दुनिया में।